students, in last video we have discussed about the asexual reproduction and its method. In last video we have discussed fission and we have concluded on the topic budding. So in today's video we are going to start budding and more methods, that is under the asexual reproduction. So before starting the budding, I will just give you again recap of the fission. Fission is the simplest method of asexual reproduction that usually occurs in unicellular form like bacteria, euglena, amoeba, etc. Okay, and in this division, parent cell divides and produces two or more daughter cells. Depending upon number of daughter cells, it may be binary fission and multiple fission. In binary fission, parent cell produce two daughter cells, and in multiple fission, parent cell produce more than two daughter cells. Okay. Now we are coming to the budding. The word budding comes from bud, it means outgrowth. Budding is the another method of asexual reproduction in which individual develops as a bud or outgrowth. Okay, depending upon the location of bud, there are two types of budding: exogenous and endogenous. Okay, there are two types of budding depending upon the location of bud. In exogenous budding, bud develops on parent body and they transform into miniature form, and after being separation formed from parent body, it starts living independent life. मैंने क्या बोला कि बडिंग दो प्रकार का होता है, किस आधार पे? तो बड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? अगर बड का फॉर्मेशन पेरेंट बॉडी पे हो रहा है, ऊपर में हो रहा है, तो एक्सोजीनस बडिंग होगा। अगर बड्स का फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी होगा तो इंडोजीनस बडिंग। फर्स्ट, एक्सोजीनस बडिंग, इट इज फाउंड इन हाइड्रा एंड ईस्ट. Okay, in hydra it is very common method, in yeast it is also common. In yeast it may produce in a chain. What happens in exogenous budding? Suppose that this is the hydra. Okay, so during the process of budding, a small bud develops upon the body. Okay, like, and this bud very soon transform into miniature form. This is the bud. Okay, still it is a single individual, it is also single individual, and as soon as this bud detached from parent body, then this starts living independent life. So after detachment, okay, and this is the young individual that soon grows into adult. So it is the exogenous bud. And in yeast, अगर आप yeast में देखना चाहेंगे तो yeast फर्स्ट एक फंगस है, ठीक है, जो यूनिसेलर है. अब फंगस में इसमें हम लोग क्या देखते हैं? अगर ये आपको ईस्ट है तो ईस्ट में बड का फॉर्मेशन चेन के रूप में भी देखने को मिलता है. ईच बड जैसे ही अलग अलग होगा, सेपरेट हो जाएगा, वो इंडिविजुअल ईस्ट के रूप में डेवलप कर जाएगा. सो इट इज द एक्सोजीनस बडिंग. नाउ मूविंग टू द इंडोजीनस
budding. The budding, the process of budding in which bird develops inside the body. इंडोजीनस में हम लोग क्या करें, बर्ड डेवलप्स इनसाइड द बॉडी. ठीक है. अब जो इंडोजीनस बर्ड है उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोजीनस बर्ड्स आर कॉल्ड जेम्यूल. आप लोग एनसीईआरटी के बुक को देखेंगे, जेम्यूल एक डार्क करके लिखा भी हुआ, एक वर्ड को हाईलाइट किया गया है, जेम्यूल. तो जेम्यूल क्या है, जेम्यूल इज द इंडोजीनस बर्ड. ये जेम्यूल होता क्या है, अगर जेम्यूल को डिफाइन करने की कोशिश करें तो जेम्यूल को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज जेम्यूल, तो जेम्यूल इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. और इन सेल्स को क्या कहते हैं, नोन एज आर्कियोसाइट. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्कियोसाइट. एंड आर्कियोसाइट क्या होता है, they are surrounded by a membrane and provided with aspicules. हम लोग क्या बोले कि जेम्यूल क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जेम्यूल क्या है तो जेम्यूल इज ए इंडोजीनस वर्ड. ठीक है, और इसको अगर डिफाइन अगर हम लोग करना है तो जेम्यूल इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स नोन एज आर्कियोसाइट सराउंडेड बाय membrane and provided with spicule. ओके, आप इसका फिगर भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर इंडोजीनस बर्ड में आप एनसीईआरटी में भी आपको फिगर दिया हुआ. ठीक है, तो फिगर को एक हम ड्रॉ करके बता रहे हैं. आप बिल्कुल एक ऐसे सर्कुलर आपको सर्किल टाइप से बनाना है, और जैसे हम लोग यहां ओपनिंग बना दिए, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल. ये मेम्ब्रेन, और यहां पे आप क्या देखेंगे कि बहुत सारे जो हम लोग मेम्ब्रेन के ऊपर एस्पिक्यूल्स भी बना सकते हैं. तो पहले अगर यहाँ पे एस्पिक्यूल्स इस तरीके से आप देखेंगे, बुक में बना भी हुआ, बुक को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करें. ठीक है, जितना बुक पढ़ना सबसे ज्यादा अच्छा होता है. बुक को जोर से 2-3 बार पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को. तो इस तरीके से पूरा आपको यहाँ पे पूरा एक फिलअप आपको एस्पिक्यूल्स, ये सब जो है एस्पिक्यूल्स है. इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, बुक में देखेंगे. These structures are archaeocytes, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है. तो आपको मालूम होगा 11th में बताया गया है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, सब अलग है. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ये आपको आर्कियोसाइट्स हुआ, ये माइक्रो फाइल, ये आर्कियोसाइट्स हो गया. ठीक है, और यहां पे हम लोग इसको अगर पूरी तरह से, तो ये मेम्ब्रेन. ठीक है, यहां पे अगर इसको कह दें एस्पिक्यूल्स. तो जेम्यूल जो हम लोग कहें कि इंडोजीनस बर्ड कहां पे होता है, किस ऑर्गेनिज्म में होता है, तो स्पॉन्ज लाइक स्पॉन्जिला, पॉलीफेरा का एक मेंबर है, पॉलीफेरा के मेंबर को स्पॉन्ज कहते हैं, उसी में एक स्पॉन्जिला. तो हम लोग देखें कि बर्डिंग 2 तरीके का होता है. एक हम लोग एक्सोजीनस बर्ड जो कि हाइड्रा और इसमें, और इंडोजीनस बर्ड हम लोग देखें कि स्पॉन्जिला में. नाउ मूविंग टू द अदर मेथड,
other common methods like fragmentation. It is another method of asexual reproduction, and this method is common in filamentous algae found in filamentous algae like Spirogyra, Podogonium, Ulothrix, etc. अब इस मेथड में होता क्या है? इस मेथड में क्या होता है कि जो हम लोग देखते हैं कि फिलामेंटस फॉर्म, चाहे वो स्पाइरोगाइरा हो, पोडोगोनियम हो या यूलोथ्रिक्स हो, जब ये मान लेते हैं कि ये अगर हम लोग एक फिलामेंट बनाते हैं, दिस इज द मैच्योर फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरल इसका क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ये अगर स्पाइरोगाइरा का एक मैच्योर फिलामेंट है, जैसे ही मैच्योर होता है फिलामेंट, नेचुरली वो ब्रेक कर जाता है पीसेस में। हम लोग क्या देखते हैं कि अंडर दिस मेथड मैच्योर फिलामेंट नेचुरली ब्रेक्स इनटू पीसेस। सपोज दैट दिस इज द वन पीस, दिस इज द सेकेंड, and this is the third piece. Okay, this is the third piece. अगर हम लोग देखें कि 3 पीस बन गया और तीनों पीस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट बोलते हैं। Each piece is called fragment, that's why it is called fragmentation. ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि मैच्योर फिलामेंट naturally breaks into pieces and each piece is called fragment. Each fragment later on divides and develops into young individual. So this is the another second piece जो हम लोग यहाँ पे fragment देख रहे हैं. This also divide and produce filament and this is another filament. तो हम लोग देखते हैं कि एक स्पाइरोगाइरा से फ्रेगमेंटेशन के कारण से 3 हम लोग को स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट बन जाता है बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सो दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। नाउ सिमिलरली दिस फ्रेगमेंटेशन पढ़े हैं, सिमिलरली एक हम लोग देखते हैं कि रीजनरेशन। आप लोग डिसाइड करेंगे रीजनरेशन एसेक्सुअल मेथड कहा जाए या नहीं कहा जाए, क्योंकि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बहुत हद तक सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा। स्टिल वी कांट से रीजनरेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, सभी से पढ़ाया जाता है, 10th में भी आप लोग पढ़े प्लेनेरिया के विषय में। तो एक बार फिर से हम लोग रीजनरेशन को भी जानने की कोशिश करें। ठीक है, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब होता है मीन्स एबिलिटी टू रीगेन द लॉस्ट पार्ट। इसको आसानी से समझा जा सकता है। हम लोग लिजार्ड को जानते हैं कि लिजार्ड को देखें क्या होता है। कभी कभी लिजार्ड किसी एक्सीडेंट के कारण लिजार्ड का टेल टूट जाता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर उस लिजार्ड को वॉच कर रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उस लिजार्ड में एक अनदर टेल का फॉर्मेशन हो रहा है और होते चल जाएगा और पूरा एक से टेल बन जाएगा। क्या बोले कि रीजनरेशन मीन्स एबिलिटी टू रीगेन द लॉस्ट पार्ट।
हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे जैसे पहले देखें कि लिजार्ड में अगर उसका एक टेल जब कट के निकल जाता है, बाहर आ जाता है, हट जाता है बॉडी से, तो उसमें खुद से वो एक न्यू टेल को रीजनरेट कर लेता है। रीजनरेशन का कैपेसिटी ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन का ग्रेट कैपेसिटी, बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी होता है। सम ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन लाइक प्लेनेरिया, बहुत कॉमन सा है, हम लोग बार बार इसका नाम भी सुने हैं, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अधिक होता है। अब क्या होता है रीजनरेशन में, तो हम लोग इसको भी जानने की कोशिश करें। तो रीजनरेशन, सपोज दैट दिस इज द प्लेनेरिया। अब ये एक एडल्ट मैच्योर प्लेनेरिया है, ठीक है, मैच्योर प्लेनेरिया। अगर एक्सीडेंटली हम लोग जब फ्रेगमेंटेशन देखे थे तो वहां पे नेचुरली, यहां पे क्या करें कि एक्सीडेंटली अगर प्लेनेरिया का बॉडी 2 और 3 पीसेस में कट जाए, टूट जाए, तो प्रत्येक पीस, ईच पीस रिगेन द लॉस्ट पार्ट। बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। सपोज दैट कि एक्सीडेंटली ब्रोकन डाउन और कट इनटू, तो अगर इसको हम लोग देखें तो सपोज दैट दिस इज द वन पीस ए बी सी। अब ऐसी स्थिति में हम लोग को लग रहा है कि भाई ये तो खत्म हो गया, ये इसका काम तमाम हो गया। ऐसा नहीं है, हम लोग क्या बोले कि प्लेनेरिया हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। ऐसी स्थिति में ए पार्ट जो है वो क्या करेगा, रीजनरेशन कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण से विल डेवलप द बी एंड सी पार्ट, और बी और सी पार्ट डेवलप करेगा तो क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी लाइक दैट। ओके, अब अगर बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट क्या होगा, ए पार्ट और सी पार्ट को डेवलप कर लेगा। अगर ये बी पार्ट इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ए पार्ट बना लिया और ये सी पार्ट भी, यहाँ पे बी पार्ट था, ए और सी बना लिया, एक प्लेनेरिया ये हो गया। और सी वाला भी क्या करेगा कि ये बी और ए को डेवलप करके अगेन इट बिकम अ वन इंडिविजुअल। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इट इज द सिंगल प्लेनेरिया। उस क्या कर रहा है, एक्सीडेंटली उसके टुकड़े हो जाते हैं, 3 पीस बन जाता है, लेकिन रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अधिक होने के कारण से ईच पीस रिगेन द लॉस्ट पार्ट। ए वाला बी और सी बना लिया, बी वाला ए और सी बना लिया, जबकि सी पार्ट हम लोग क्या देखते हैं कि वो बी और ए बना लिया। सो फ्रॉम वन इंडिविजुअल देयर आर 3 इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल इंक्रीज कर गया तो रिप्रोडक्शन हम लोग मानते हैं। लेकिन जैसे ही हम बोले कि रीजनरेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेगुलर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा क्यों होता है? और तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका मेन रीजन है, अगर प्लेनेरिया रीजनरेशन पे आधारित होके अपने नेक्स्ट जनरेशन को बनाएगा, तो इसको हमेशा ही इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट हो और हम टुकड़े में बच जाएं और फिर मेरा नंबर बढ़ेगा। ईच एंड एवरी टाइम हम लोग क्या कह रहे हैं कि
जो प्लेनेरिया को वेट करना पड़ेगा कि इसका बॉडी कट हो जाए इन द पीसेस, सो दैट ईच पीसेस विल डेवलप इनटू यंग इंडिविजुअल। सो इसलिए हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं, ये एक्सीडेंटल। अगर कोई आपसे ये जानने की कोशिश करे, लग रहा है कि जैसे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों एक जैसा देखने से लग रहा है, लेकिन अंतर क्या है? तो फ्रेगमेंटेशन इज अ नेचुरल मेथड। हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्रेगमेंटेशन इज अ नेचुरल मेथड, ठीक है, जबकि रीजनरेशन क्या है? एक्सीडेंटल। तो ये हम लोग दोनों में डिफरेंस भी जान सकते हैं। और भी अगर हम लोग देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर कुछ मेथड और भी मेथड्स को जानने चाहें तो स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के द्वारा अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, सम स्पीसीज, पर्टिकुलरली सम एल्गी, सम फंजाई, वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस द स्पोर्स, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एंड दीज स्पोर्स क्या करता है? जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू यंग इंडिविजुअल। स्पोर फॉर्मेशन में क्या बोल रहे हैं कि स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन इज द अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज कॉमन इन एल्गी एंड फंजाई। स्पोर्स क्या होता है? स्पोर्स जर्मिनेट कर जाता है और जर्मिनेट करने के बाद वो यंग इंडिविजुअल में डेवलप करेगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए। हाँ, स्पोर का प्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में हो सकता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है। अब अगर हम लोग कहें कि स्पोर होता क्या है, अगर आपको आएगा स्पोर्ट्स में बहुत तरह के स्पोर्ट्स हैं और स्पोर को डिफाइन करना है तो क्या हम लोग कह सकते हैं? तो स्पोर्ट्स आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड एज asexual reproductive unit by certain algae and fungi, either unfavorable condition or favorable condition। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्पोर क्या है? स्पोर्स आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ओके, which are produced as asexual reproductive unit by certain algae like Chlamydomonas, Ectocarpus, etc. and certain fungi like Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Penicillium, etc. ठीक है, अब हम लोग देखें कि यहाँ पे जो स्पोर कुछ एल्गी और कुछ फंगस के द्वारा भी यहाँ पे किया जा रहा है। अब स्पोर
अगर हम लोग देखें तो स्पोर बहुत तरीके के हैं, ठीक है। दे आर, एक ये भी आप जान लीजिए कि दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन as well as unfavorable condition। ध्यान रखेंगे, जो फेवरेबल कंडीशन में जो भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उसका जो वॉल होगा थिन वॉल्ड होगा और फूड मटेरियल नहीं होगा, इमीडिएटली जर्मिनेट कर जाता है। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, आई विल डिस्कस इट मोर। ओके, थैंक यू।